So JEE Main first attempt results are finally out and you finally know that where do you stand. Now it is very important for you to act rightly from now. Take the right step, take the right decisions and act properly. Otherwise सब कुछ ऐसे खिचड़ी बन जाएगी ना और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. बोर्ड्स आ रहे हैं, JEE Main आ रहा है, बिटसेट आ रहा है, JEE एडवांस्ड आ रहा है, बाकी इतने सारे प्राइवेट एग्जाम्स आ रहे हैं, मणिपाल MIT, VIT ट्रिपल ई, SRMJ ट्रिपल ई, कॉमेड के और कितने सारे और एग्जाम्स तुम्हारे आ रहे हैं एंड यू विल बी सो कन्फ्यूज्ड on which exam to prepare for and how to prepare for it, किस एग्जाम में किस में स्विच करें. So in today's video we are going to talk exactly about that कि तुम्हारे next steps क्या होने चाहिए and how you should act after your JEE first attempt का result, because result के बाद काफ़ी ज़्यादा anxiety होती है, पैनिक सिचुएशन होता है और इतनी सारी चीज़ें होती है कि एस्पिरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता. सो दिस वीडियो विल गिव यू अ प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ हाउ यू शुड थिंक एंड एक्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. द नंबर वन थिंग आई विल टेल यू राइट नाउ इज दैट आई नो अ लॉट ऑफ यू आर एंग्शियस, अ लॉट ऑफ यू have a lot of worries that what will happen. My parents have so much expectations from me. They have invested so much in me from the past 2 years, but I'm not able to deliver that. ठीक है, एक अंदर में self doubt होगा कि will I be able to do that in the future or not. I can totally understand, I can totally relate with your situation. But my friend, realize one thing, that worrying and being anxious about your situation will give you nothing in your life. I have a question for you. Do you want to be the top 1%? You want to be in the top 1%, right? You want to study in one of the top colleges of this country. So you should behave like those top 1%. You should act like you are already that top 1%. If you are anxious, if you are worrying about your situation, then it's not the mindset of the top 1%. The mindset of the top 1% is to fix things, look for solutions and focus on their next target properly. That's how the top 1% thinks. So my number one advice to you would be to start thinking and acting like the top 1% and develop that mature mindset of seeing things logically. That अच्छा है, एंग्जाइटी होने से आई विल नॉट गेट रिजल्ट, एंग्जाइटी होने से मुझे मेरा गोल अचीव नहीं होगा. मेरा गोल अचीव तभी होगा व्हेन आई सिट डाउन, एनालाइज माई सेल्फ एंड एक्ट according to my situation. That's how a mature top 1% JEE aspirant thinks. So develop this mindset first of all. Otherwise कितना ही पढ़ाई कर लो, कितना ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला अगर ये mindset, जब तक तुम एक strong will power वाला mindset, if you don't develop that. So what to do? Analyze yourself. Now you know where do you stand. कौन से चैप्टर्स वीक है, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन से चैप्टर्स मीडियम है, एक लिस्ट बनाओ और क्या किया जा सकता है उनको फिक्स करने के लिए इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ठीक है, कैन दे बी फिक्स्ड इन नेक्स्ट फ्यू डेज? इफ यस, take a decision accordingly that okay, I'll focus on JEE Main. If they can't be fixed, if you know that preparation काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, then take a decision. Yeah, I'll focus on some other exam like BITSAT, maybe some other state exam like KSET, MSTCT, whatever looks within your reach. You should start preparing for that as soon as possible specifically. Plus ask yourself this question कि आज मेरा जो इतना बेकार रिजल्ट आया वो क्यों आया है? टेंशन तो हो रही है, लेकिन उस टेंशन को फिक्स करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? What are the things that I have done in the past 2 years जिसके कारण मेरा ये रिजल्ट ऐसा आया है? And if you keep repeating those mistakes again and again and again in next few days and next few months, the result is going to be the same again. There will be no difference after few months. जब second attempt का रिजल्ट आएगा, जब एडवांस का रिजल्ट आएगा, जब बिटसैट का रिजल्ट आएगा, there will be absolutely no difference in your result, because if you will do the same thing that you have done in the past again, then the result is definitely going to be the same. अगर तुम्हारे स्टडी पैटर्न सेम है, अगर तुम्हारे पढ़ने का तरीका सेम है, अगर तुम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो अपने प्रिपरेशन में, then my dear friend, the result is going to be the same and this is the harsh reality. राइट नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, सिट एंड ब्लेम NTA कि मेरे शिफ्ट का पेपर तो टफ आ गया था. ठीक है, इसलिए मेरी परसेंटाइल नहीं है. अगर मेरे को इजी वाला शिफ्ट मिल जाता देन तो आई वुड हैव गॉट अ ग्रेट परसेंटाइल. ठीक है, ब्लेम करते रहो, NTA को गालियाँ देते रहो ट्विटर पे एंड ये सारी चीज़ें अपने 10 दिन ऐसे ही बर्बाद कर दो. और द नेक्स्ट थिंग कुड बी यू सिट डाउन, यू एक्सेप्ट. I'm not saying that you are responsible for it. I'm just saying that is the reality. You'll have to accept that reality. And what is the next plan? जैसे कि मैंने बोला ना, mindset. So either you go this way or you go that way. ये time वापस नहीं आने वाला है. Time is the most precious thing that you have right now. So please, please, please focus on investing your time properly. Don't waste your time in doing such things जो तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्लेजर तो दे देगा. चलो NTA को 4 गालियाँ दे देता हूँ, उससे अच्छा तो फील होगा इंटरनली, बट नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड. योर सिचुएशन इन लाइफ इज गोइंग टू बी the same. You are going to be there only. Whereas someone जिसकी percentile अच्छी नहीं आई है but he has already started working properly, analyzed his mistakes and are fixing that, will score very very good in the upcoming exams. ठीक है, once you have analyzed, अब next step क्या है?
नेक्स्ट चीज जो तुम्हारे सबके सामने आ रही है एक्सेप्ट फॉर ड्रॉपर्स इज योर बोर्ड एग्जाम्स। फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए तुमने उतने अच्छे तरीके से फोकस नहीं किया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। सो develop all of those skills that are needed for board exams. We have already made a video for board exams. You can click here on I button somewhere and watch it. But the point is that focus on boards. I know so many people who have scored 300 plus in BitSat, who even cleared JEE Advanced under 5000 rank, but couldn't clear the board's criteria, and that's why they are studying in a very normal college, right? Do you want the same to happen with you? No, right? So the very first step is board exams. Do them very, very properly, practice for them very, very properly, follow the right steps and score great marks in 12th boards first of all. That being said, इसके साथ साथ you need to also keep preparing for the other एग्जाम्स दैट यू आर टारगेटिंग। अगर तुम ये चीज छोड़ देते हो, टच छोड़ देते हो, तो आफ्टर बोर्ड एग्जाम अगेन यू विल बी क्लूलेस कि मैं तो कहाँ था, मुझे कुछ याद ही नहीं है जो मैंने जेई के लिए पढ़ा था या किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा हुआ था। मेरे तो एमसीक्यू से अब सब्जेक्टिव कर करके आई हैव लॉस्ट टच ऑफ MCQ questions. That shouldn't happen. That's why you should have a time slot of 3 to 4 hours in which you should keep practicing MCQ questions, previous year questions, so that वो touch बना रहे और वो touch तुम्हारा ना छूटे. So that's why other exams say, I'll come to my next point, is make it very, very clear on which exam you should focus on. Whether you should focus on JEE Main. Realistic stand low. रियलिस्टिकली सोचो कि विल आई बी एबल टू डू गुड इन जेई मेन, तभी जेई मेन फोकस करो, अदरवाइज डोंट फोकस ऑन जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट। फोकस ऑन अदर एग्जाम्स लाइक बिटसैट, बहुत हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट एंड बिटसैट कि किस पे फोकस करना चाहिए, तो कमेंट्स में डेफिनेटली बताना, विल डेफिनेटली मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट। बट द थिंग इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हें बिटसैट जैसे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है अगर तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जेई मेन के लिए। तो इसके अलावा एग्जाम्स लाइक यूजीडब्ल्यू, जिसको दे के यू गेट इनटू IIIT हैदराबाद, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, जाके प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग आर वेरी वेरी गुड। इसके अलावा देर इज IISc एंड मेनी मोर सच बैकअप्स जिस पे तुम्हें डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। अभी लगता है ना कि अच्छा भैया कॉमेड के का फॉर्म भरो कि नहीं, VIT IIIT MET इनका फॉर्म भरो कि नहीं। माई एडवाइस वुड बी टू फिल द फॉर्म ऑफ ऑल द एग्जाम। प्रैक्टिस होगी ना, जाना ना जाना अलग चीज होगी, बट आफ्टर योर रिजल्ट्स यू विल हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड यू कैन चूज द बेस्ट। तब रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं तब फॉर्म नहीं भरा, आई डिडंट गिव द एग्जाम और आज मेरे पास ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। सो फिल द फॉर्म ऑफ ऑल द एग्जाम्स एंड उसके लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करो ना करो, दे के डेफिनेटली आना है। इसके अलावा ऑब्वियसली अदर देन जेई मेन द बेस्ट ऑप्शन यू हैव करंटली राइट नाउ इज बिटसैट। सो टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर the exam that you want to target along with the board exams as well, so that touch ना छूटे तुम्हारा। अब नाउ एक चीज, अब जैसे कि मैंने मिस्टेक्स के बारे में बात करी ना, there are major mistakes that students do, like if you are preparing for BitSat, not watching the relevant lectures for BitSat, ठीक है, not solving the relevant practice material for BitSat, practicing the same JEE main level questions and expecting that BitSat में ultimately अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे, because BitSat में speed and accuracy का खेल है and BitSat के जो questions आते हैं उनका nature itself में काफ़ी different होता है than JEE main, so it's very important to practice from a relevant source. Other than this, the most important thing is टेस्ट सीरीज, ऐसे जगह से प्रैक्टिस करो जो एक्चुअली में रेलेवेंट हो। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स डू वेरी बिग मिस्टेक इज दैट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट फ्रॉम अ इररेलेवेंट सोर्स, जो कि बहुत ईजी है। ईजी होने से क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है एंड देन फाइनली ऑन द डे ऑफ एग्जाम तब समझ आता है ओके पेपर तो एक्चुअली में ऐसा था। और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड बना देते हैं। हार्ड बनाने से हमारा डिमोटिवेशन होता है एंड अल्टीमेटली पेपर में जाके देखते हैं अरे पेपर तो काफ़ी इजी था। इफ़ आई वुड हैव प्रैक्टिस्ड फ्रॉम अ गुड एंड रेलेवेंट सोर्स, मेरी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऑप्टिमम होती और मैं एक्चुअली पेपर में जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आता। सो दैट्स व्हाई जैसे बिटसैट के लिए तुम देख रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन चेक आउट फोडू क्लब की टेस्ट सीरीज। इट्स मेड बाय बिटसियंस एंड फ्रॉम द पास्ट 3 years इट इज़ प्रोड्यूसिंग ट्रेमेंडस रिजल्ट्स एंड इतने सारे बच्चे ऑलरेडी यूज़ करके दे आर राइट नाउ studying at BITS Pilani. इसके अलावा जैसे कि I told about you relevant lectures, Odoo Club also has its own crash course which has BitSat relevant lectures. There's the best source for you to watch the lectures in a very concise manner where there is theory as well as a lot of problem solving, which is the most important thing for BitSat. इसके अलावा some of the major mistakes और जिन पे तुम्हें वर्क करना चाहिए वो तुम्हारा बॉडी क्लॉक इंप्रूव करना। काफ़ी लोगों को आदत होती है रात में पढ़ने की एंड रात में मॉक टेस्ट दो तो नंबर तो आ जाते हैं, बट वो सेम चीज़ सुबह जाके वो जेई मेन में देके आए तो नंबर नहीं आए। क्यों? क्योंकि बॉडी क्लॉक सही नहीं था, दिमाग उसकी बेस्ट प्रोडक्टिव स्टेट में
काम नहीं कर पाएगा। सेकंड चीज़ है कि खुद को प्रॉपरली एनालाइज ही ना करना, सारी गलतियां नोट डाउन ही ना करना और वही सेम चीज़ फॉलो करते जाना, तो ये भी तुम्हें नहीं करनी है। अगली चीज़ होती है रियलिस्टिकली ना सोचना, काफ़ी इरियलिस्टिकली सोचना कि अभी तो 100 मार्क्स भी नहीं आ रहे हमारे जेई मेन में और हम सोच रहे कि हम एडवांस में 5000 रैंक के अंदर क्रैक कर लेंगे। ठीक है, ये अनरियलिस्टिक चीज़ है। ओके, हज़ारों में 0.001 में ऐसा एक दो केस एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जहाँ पर मेंस में काफ़ी खराब रिजल्ट होता है और वो एडवांस में काफ़ी अच्छा हो जाता है, बट जस्ट सी द रेशियो, सबका नहीं होता वैसा। रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को एनालाइज करो और देखो कि कितना आता है एंड बेस्ड ऑन दैट टेक अ स्टेप, टेक अ डिसीजन कि किस एग्जाम पे तुम्हें फोकस करना है। अब इस वीडियो से तुम्हें क्लियर आइडिया ये तो लग गया होगा कि हमको नेक्स्ट अपने स्टेप्स कैसे लेने हैं, बट कईयों को अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होगा बिटस्टैट के क्रैश कोर्स के रिलेटेड कि उसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और तुम कैसे बिट स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हो। तो दी अल्टीमेट बिटस्टैट क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वाली वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके तुम देख सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, साथ में फोड़ेंगे।